Hello everyone, my name is Mohit Kumar. I am a student of second year from IT department in Sandwich Ploti College of Engineering and Technology, Nagpur, Maharashtra. Today I discuss about the first unit of data structure. The name of subtopic is selection sort. So let's start with the introduction of sorting algorithm. So sorting algorithm organized data. Organized data means sorting algorithm arrange data in a specific order, like ascending or descending order, and then search efficiency. Short dot, Shorted data allow for faster searching using technique like binary search. And then data structure. Sorting is a fundamental for many data structure and algorithms. So next, applications. Sorting is used in database search engine and other areas. So let's start with the principle of selection sort. So first find the maximum. Find the maximum means the algorithm start by finding the smallest element in the unsorted subbinary, and then second step, swap. The smallest element is then swapped with the element at the beginning of the unsorted subbinary. And third point is repeat the process. This process is repeated for the remaining unsorted subbinary till the entire array is sorted. So basically, selection sort method, how it works. Selection sort is a method of sorting, the method to arrange the elements in ascending or descending order. For, for to arrange the element in ascending, to begin with the zeroth element is compared with the or remaining element. If it is found to be greater than all the elements, then they are interchanged. So after the first interaction, smallest element get placed at the first location or the first position. Similarly, in the second iteration, the second lowest element are get placed at the second position in the list. As the result, after all the iteration, the list become a sorted list. For example, for sorted the given data using selection sort. So इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है 98, 91, 45, 4, 2 एंड 94. इसको हम करेंगे सॉर्टेड मैनर में. तो सॉर्टेड मैनर में पहले हमें ये डाटा अनसॉर्टेड मैनर में दिया गया है, जैसे 98, 91, 4, 2 एंड 94. तो ये अनसॉर्टेड मैनर में इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें पहले वाले एलिमेंट को लेना है, उसको कंपेयर करना है दूसरे वाले एलिमेंट के साथ. मीन्स कंपेयर 98 विद 91. अगर ये बड़ा है, 98 इज ग्रेटर देन 91, सो देन स्वैप, अदरवाइज एज इट इज. सो नेक्स्ट स्टेप इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे. 91 को हम कंपेयर करेंगे 45 के साथ. सो 91 फिर से बड़ा तो हम 45 को फर्स्ट पोजीशन में लाएंगे और 91 को थर्ड पोजीशन पे. यही स्टेप रिपीट करते जाएंगे लास्ट तक. फिर लास्ट में क्या होगा, हमारा 2 जो है 2 को हम चेक करेंगे 94 के साथ. 2 छोटा है, अगर छोटा है तो उसमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज वैसे ही लिखेंगे. एंड देन सेकंड स्टेप में हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रहा है, ये हमारा अरेंज हो चुका है. तो हमें इसको फिर से कंपेयर नहीं करना है. हम स्टार्ट करेंगे i+1 से, यानी कि 98 से. सो 98 को कंपेयर करेंगे ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट से. सो 98 कंपेयर विद 91. सो 98 इज ग्रेटर देन 91, then swap. After that, 91 is compared with 45. So 91 is greater than 45. Then after swap, repeat the iteration and till 4 is 4 with 94. हम लास्ट में कर रहे हैं 4 को 94 से, लेकिन 4 है हमारा कम है, इसलिए हम इसको स्वैपिंग नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जब आएंगे तब हमारे पहले 2 एलिमेंट स्वैप हो चुके होंगे, जैसे कि 2 हो गया और 4, ये अरेंज हो चुका है. सो हम नेक्स्ट i+1 को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे. 91 को हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ. सो 91 को जब हम कंपेयर करेंगे 91 के साथ,
तो हमारा 91 पहले आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 98। सो फिर उसके बाद फिर से 91 को करेंगे 45 के साथ कंपेयर। सो 45 पहले आया तो 91 बाद में, एंड देन लास्ट में 45 को 94 से कंपेयर करेंगे। सो जो इसका 45 छोटा है तो इसमें स्वैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हमारा 2, 4 एंड 45 शॉर्टेड हो चुका है, सो हम 98 से स्टार्ट करेंगे। 98 को 91 से स्वैप करेंगे, चेक करेंगे। सो 98 बड़ा है 91 से, तो हमारा 91 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 98, एंड देन सेकंड स्टेप में इसी में 91 को 94 से करेंगे। तो सो 91 छोटा है 94 से, तो इसमें स्वैपिंग नहीं चाहिए, तो एज इट इज लिख देंगे इसको। सो लेट्स, ये आगे हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, 2, 4, 45 एंड 91 ये अरेंज है, तो जब ये अरेंज है तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम 98 को 94 से करेंगे, तो जो 94 है वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 98, और इसी से हमारा जो पूरा का जो हमारे डाटा मिला था वो अरेंज हो चुका है। 2, 4, 45, 91, 94 और 98, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। और इसमें एक पॉइंट और होता है कि हमारे जितना भी डाटा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 6 था, तो हमें इसको 6 बार लेना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बट हम जैसे जैसे आगे एक एक स्टेप जाते जाएंगे, हमारा एक एक कम होता जाएगा। जैसे पहले में 6 था, दूसरे में 5 लाइन्स का हो गया, तीसरे में 4 लाइन का, तो एक एक कम होता जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। सो देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड होता है कोई हमारे फंक्शन को प्रोसेस करने में। तो उसमें केसेस आते हैं, जैसे बेस्ट केस, वरेस्ट केस कौन सा है हमारा, जिसमें ओ एन ऑफ 2 आएगा, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। सो देन फंक्शन ऑफ सिलेक्शन रॉड। सो फंक्शन ऑफ सिलेक्शन रॉड हमें एक पहले हमें इंटीजर लेना पड़ेगा आई, जे और टेम्प। टेम्प इज मीन्स टेम्परेरी फंक्शन हम लेंगे फॉर आई। आई जब हमारा 1 होगा, आई 1 है और डिमेंशन से कम है, सो हम आई प्लस प्लस करेंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हम जाएंगे जे में, जे हम आई प्लस 1 लेंगे। मीन्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट 98 था, हम इसको आई मानेंगे, और आई प्लस 1 जे को हम मानेंगे आई प्लस 1 यानी कि 91। और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है फिर हम उसका यूज़ करेंगे, और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है फिर हम जाएंगे इफ एरिया ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ जे। अगर ये ऐसा है तो तब हम इसका यूज़ करेंगे। टेम्परेरी फंक्शन में हम पहले क्या, जो हमारा आई है जैसे कि 98 था, इसको हम पहले टेम्प में डालेंगे, हमें इसको टेम्प में ऐड किया, उसके बाद एरिया ऑफ जो आई की जगह जो एरिया ऑफ जे था उसकी वैल्यू एरिया ऑफ आई में डालेंगे, एंड देन एरिया ऑफ जे में जो है उसको फिर से टेम्प की वैल्यू एरिया ऑफ जे में डालेंगे। सो उस तरीके से ये फंक्शन वर्क करेगा। सो आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन शॉट। सो एडवांटेजेस क्या है इसके? इन प्लेस शॉटिंग, तो सिलेक्शन शॉट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी, इसको फालतू एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ये इजीली समझ में आ जाएगा, इम्प्लीमेंट अंडरस्टैंडिंग में इजीली हो जाएगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी इजी है। each After each iteration a new element is placed in a correct position, ये हर एक इटरेशन के बाद इसको एक जो इसका एलिमेंट होगा न्यू एलिमेंट, उसको करेक्ट पोजीशन मिलेगी। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, इस फर्स्ट वाले स्टेप में हमने जब किया तो उसमें हमें 2 को पूरा उसकी पोजीशन मिल गया, एंड देन 4 को, उसके बाद 45, 91, 94 एंड दैट, इसका यही मतलब है। एंड देन उसके बाद लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सिलेक्शन शॉट। लिमिटेशन, अब लिमिटेशन क्या है इसके? सिलेक्शन शॉट हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of n power 2 making it inefficient for large data set. उसके then excess swapping, it means perform necessary swappings
क्योंकि अगर किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें कई बार डाटा अगर कुछ दिया हुआ है, 6 का डाटा दिया हो, उसमें से हमारे 4 अगर सही हैं, तो वो रिपीट करता है उसको, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। एंड देन परफॉर्मेंस, इट it's not the most efficient sorting algorithm for general purpose sorting. So comparison to other sorting algorithm is merge sort. Merge sort more efficient for large database, and then quick sort generally faster than selection sort, but has potential for worst case scenarios. And insertion sort more efficient for nearly sorted dataset. So thank you so much.